Welcome to Blessing Today. ब्लेसिंग टुडे में आपका स्वागत है। The Lord has given us one more magnificent week to glorify Him, to live for Him, to receive from Him. परमेश्वर ने हमको ये अद्भुत हफ्ता दिया है कि उसके लिए जिएं, उसको महिमा दें और उससे प्राप्त And करें। particularly today, I believe the Lord is going to do something good in your life. और मैं विश्वास करता हूँ कि खास करके परमेश्वर आज आपके जीवन में कोई भला काम करेगा। Maybe we can start with a comment that I have received on my mobile. हम उस कमेंट से शुरू करते हैं जो मुझे मेरे मोबाइल पर मिला है। This is from one Binny George from Salem. ये एक बहन है बिनी जॉर्ज सेलम से। इन्होंने हमें लिखा है। They sent it to our Manoj and Anu, and they forwarded it to me. उन्होंने ये मनोज और अनु को भेजा और उन्होंने ये मुझे फॉरवर्ड किया है। I am thankful for your ministry and the messages you share on Morning Glory, Sunday worship, and other programs. मैं आपकी सेवकाई के संदेशों से बहुत प्रभावित हुआ हूँ जो आप अपने प्रोग्राम मॉर्निंग ग्लोरी में देते हैं और रविवार को भी देते हैं। They help us to get an in-depth knowledge of the Bible and a closer walk with our Lord. ये हमारी मदद करते हैं कि हम बाइबल को गहराई से जानें और परमेश्वर में पूरी गहराई के साथ और उसके नजदीकी में चलें। Thank you ever so much. Morning Glory is like manna every morning. आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्योंकि मॉर्निंग ग्लोरी सुबह के मन्ना के समान I है। wish to place on record this testimony which is nothing but a miracle of our Lord and Savior. आप जो गीत दिखाते हैं वो और कुछ नहीं बल्कि उद्धारक प्रभु यीशु की गवाही है। My husband and I are part of a charitable hospital which has now been made into COVID-19 hospital, taking in mild and moderate cases of the disease. मैं और मेरे पति एक चैरिटेबल हॉस्पिटल में काम करते हैं जो अभी कोविड-19 हॉस्पिटल बनाया गया है जिसमें माइल्ड प्रभावित हुए रोगियों को लिया जाता है जो कोविड-19 बीमारी से प्रभावित हुए हैं। As you are aware, the last week has been horrendous with the government shutting down oxygen supplies. We had to walk a tight rope. जैसे कि आप सब जानते हैं कि ऐसे समय में ऑक्सीजन सप्लाई की घटी हो गई थी तो उस समय हम लोगों को बहुत ही ज्यादा मुश्किल समय में से होकर जाना पड़ा। We would have oxygen lasting for just 6 hours or so and kept our fingers crossed and waited for the refills which would come in just before the cylinders went dry. हालांकि ऑक्सीजन केवल 6 घंटे तक ही चलता था। हम बुरा कुछ होने नहीं देना चाहते थे और हम लोग राह देखते थे और ऐसा हुआ कि सिलेंडर खत्म होने के पहले ही रिफिल आ गया। It has been very stressful to say the least. Hundreds of phone calls, talking to government representatives, refilling agencies, etc. हमें सरकारी अधिकारियों को और सरकारी एजेंसियों को फोन करने पड़ते थे, रिफिलिंग एजेंसीज को। Last Friday, this is maybe 2 weeks ago, last Friday after a long day's work, I got to see the ministry only at 11 p.m. That means recorded version. पिछले शुक्रवार यानी कुछ ही हफ्तों पहले दिन भर के काम के बाद जब मैं घर आई तो मैंने आपका रिकॉर्डेड संदेश देखा जो कि रात के 11 बजे चल रहा था। I placed our need to get the supply of oxygen to our center on a regular basis and to keep it stable. और मैंने प्रार्थना की कि हमारा ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो नियमित रूप में हो और स्थिर हो, वो स्थिर रूप में हो। I begged God to fill all the cylinders we had some way or other so that we could help our patients. मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि हमारे सिलेंडर भरे रहें ताकि हम जो हमारे मरीज हैं उनकी सहायता कर सकें, मदद करें। On the same day, my husband had put up a post on Facebook narrating the oxygen shortage at the center, and the post was tweeted several times. उस समय मेरे पति ने फेसबुक पर पोस्ट किया कि ऑक्सीजन सप्लाई की हमें मदद चाहिए और ये जो पोस्ट थी ये कई बार फॉरवर्ड की गई कि हमारे सेंटर में ऑक्सीजन की जरूरत है। On Saturday morning,
We received a call from a doctor in Mumbai inquiring the veracity of the problem. शनिवार की सुबह मुंबई के एक डॉक्टर ने हमें फोन किया और समस्या कितनी गहरी है इसके बारे में पूछा। Undertaking our need, this kind person promised to send 17 oxygen concentrators, which is nothing but a miracle of our Almighty God. और उस समय इस भले व्यक्ति ने 17 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भेजने का वायदा किया और मैं तो कहती हूँ कि ये परमेश्वर की तरफ से महान कार्य था, ये परमेश्वर की ओर से था। Our hearts are full of thankfulness that God works through people whom we don't even know to fulfill His ways. हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है कि जिन लोगों को हम नहीं जानते परमेश्वर उन्हें भी उनके द्वारा भी काम करता है। All praise to our Lord God and our Savior Jesus Christ. Amen. Please continue to uphold us in your prayers. Bini George, Salem. सारी स्तुति परमेश्वर को मिले। प्रार्थना में हमें स्मरण रखिए। बिनी जॉर्ज, सेलम से। Amen. Isn't that wonderful? आमेन। क्या ये अद्भुत नहीं? All right, these days we are having a study on the uniqueness of Christ. ठीक है, तो इन दिनों में हम अध्ययन कर रहे हैं यीशु के अलग होने के बारे में। And last we were looking into Jesus' uniqueness in His death. पिछली बार हमने देखा कि यीशु अपनी मृत्यु में कैसे अलग था। Jesus' death was not an ordinary death or a murder or martyrdom or any such deaths that we commonly know. यीशु की मृत्यु तो कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी, हत्या नहीं थी, शहीद होना नहीं था, जैसे कि आमतौर पर हम दूसरे लोगों की मृत्यु को देखते हैं। But then what was it? तो फिर वो कैसी थी? I gave you a few points. मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे। And let's just to recollect. Number one was substitutionary. Jesus' death was substitutionary. तो आइए सारांश में देखते हैं। यीशु की जो मृत्यु थी वो तो हमारे बदले में थी। And secondly, it was a guilt offering. और दूसरी बात कि वो तो दोष बलि थी। And number three, it was atonement. और तीसरी बात उसकी मृत्यु तो प्रायश्चित थी। Now coming to the fourth point, we are going to start from here. और यहाँ से हम लोग चौथे पॉइंट को शुरू करते हैं। It was for our redemption. It was redemptive. ये तो हमारे छुटकारे के लिए मृत्यु थी, ये हमारे छुटकारे की मृत्यु थी। And we're going to read that verse in 1 Peter. Again, we usually read this verse. हम इस वचन को पढ़ेंगे। आमतौर पर हम पहले पत्रस से पढ़ते हैं। And chapter 1, verse number 18 and 19. अध्याय 1 वचन 18 और 19 पढ़ते हैं। For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your ancestors, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. This is verse number 18 and 19. क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। इस तरह से ये वचन कहता है। So specifically there says Jesus' death and shedding His blood was redemptive. It was for our redemption. खास करके ये कहता है कि यीशु ने जो लहू बहाया वो तो हमारे छुटकारे के लिए था। Redemption happens when something is lost and something is brought back to the previous owner. छुटकारा तब होता है जब कोई किसी चीज को खो देता है और उसे खरीद कर पहले मालिक की ओर वापस लाया जाता है, ये छुटकारा है। So we were lost, we were gone astray from God, and we were possessed back. That is redemptive. हम खो गए थे और हम परमेश्वर से दूर चले गए थे और हम फिर से वापस लाए गए, यही तो छुटकारा है। And here it says, you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed. ये कहता है तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ, किसी नाशवान वस्तु से नहीं हुआ। In the Old Testament there was a system and there was a custom to redeem an animal or something. They had to give an equal amount of silver or gold so that will be possessed back. पुराने नियम में एक ऐसा तरीका था, ऐसी परंपरा थी
कि किसी वस्तु या फिर किसी पशु को छुड़ाने के लिए उन्हें एक निश्चित राशि देनी पड़ती थी ताकि उसके द्वारा वो उस पशु को या उस वस्तु को छुड़ा सकें। But in your case, Peter says, it was not with silver or gold that you were redeemed. लेकिन आपके केस में पतरस कहता है कि आपने सोने और चांदी से छुटकारा नहीं पाया है, इससे नहीं मिला, But with the precious blood of Christ. लेकिन बहुमूल्य यीशु के लहू के द्वारा छुटकारा प्राप्त हुआ है। And from what you were redeemed. तो आपने किससे छुटकारा प्राप्त किया That है? is also clearly mentioned here. ये भी यहाँ पर स्पष्ट रीति से बताया गया है। You were redeemed from your empty way of life handed down to you from your ancestors. तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है उससे तुम्हारा छुटकारा हुआ है। That means we moved away from God and we were going astray and we were living a wayward life away from God and which was handed down through the traditions of our ancestors. इसका मतलब हम परमेश्वर से दूर चले गए थे, हम भटक गए थे और उस परंपराओं के अनुसार हम जीवन जी रहे थे जो हमारे बाप दादों से हमें मिली थी, जानते हैं? And specifically, Peter says, you are redeemed from the empty way of life. खास करके पतरस कहता है कि तुम अपने निकम्मे चाल चलन से छुड़ाए गए हो, तुमने छुटकारा पाया। Many people are living an empty life. बहुत से लोग जो हैं वो एक खालीपन में अपना जीवन जी रहे हैं। Because they are living a lot of, I mean, they are doing a lot of things. They have many goals and they have many things to achieve. But in the end, life is empty. इसका मतलब ये है कि वो बहुत कुछ कर रहे हैं और बहुत कुछ पाना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उनका जीवन एक तरह से खाली ही है। इन सब के बावजूद भी वो खाली ही है। For example, a person is growing उदाहरण के लिए कोई अगर ड्राइंग कर रहा है and he studies well, और वो अच्छे से पढ़ाई करता है, has an aim. उसका लक्ष्य है Somehow I should take some degrees. कि मुझे कोई डिग्री मिलनी चाहिए And after that, I must secure a very good job, और उसके बाद मुझे कोई अच्छी नौकरी मिलनी चाहिए। preferably somewhere abroad. अच्छा होगा कि मुझे विदेश में नौकरी मिल जाए। And for that, I have to pass IELTS उसके लिए IELTS पास होना चाहिए or some other courses. या फिर कुछ और कोर्स करने होंगे। And once I get that job, I must get married. और जब मुझे नौकरी मिलेगी मुझे शादी करनी होगी, I should get settled somewhere. मुझे अच्छे से सेटल होना होगा, Should have a comfortable life, आराम से जिंदगी जीनी है, comfortable everything. सारी बातों में आराम से रहना है And my future should be secure. और मेरा भविष्य सुरक्षित होगा। And one day, God will call that person back home. और एक दिन उस व्यक्ति को परमेश्वर वापस बुला लेगा। Everything is set, but that person is not there to live. सब कुछ तो हो गया, सब कुछ है, लेकिन अभी वो व्यक्ति जीवित नहीं है। If that person is spiritually empty, the whole life is empty because there is an empty way of life handed down from our ancestors. अगर वो व्यक्ति आत्मिक रूप से खाली है तो सब कुछ खाली है, क्योंकि जीवन का ऐसा निकम्मा चाल चलन है जो हमारे बाप दादाओं से हमें मिला है, जानते हैं? A godless life is an empty life. भक्तिहीन जीवन तो एकदम पूरी तरह से खाली If a जीवन person है। is not spiritually rich, that person, even if he is financially rich, is an empty person. अगर कोई व्यक्ति आत्मिक रीति से धनी नहीं है तो चाहे वो आर्थिक रीति से भी धनी हो, लेकिन फिर भी वो एकदम खाली ही है। Are you listening to me? क्या आप मुझे सुन रहे What हैं? about you? आपके बारे में क्या? Are you still in the empty way of life? क्या आप अभी भी अपने जीवन में खालीपन में बने हुए Take a हैं? U-turn, come to God. यू टर्न लीजिए और परमेश्वर के पास आइए। Receive the redemption from Jesus. यीशु से छुटकारा प्राप्त And कीजिए from that moment, your life will not be an empty life. It will be full of joy, full of meanings, and you have eternal life. You have a purpose. You have a destination. उसके बाद आपका जीवन खाली नहीं रहेगा, आपके पास उद्देश्य होगा और आपके पास मंजिल होगी, जानते हैं? Jesus' life death was unique because it was redemptive. यीशु की मृत्यु तो अलग थी क्योंकि वो छुटकारे के लिए थी कि हमें छुड़ाए। Write down number 5. लिखिए नंबर 5, Ransom. छुड़ौती के लिए। Jesus' death was like giving a ransom to get us.
यीशु की जो मृत्यु थी वो तो ऐसी थी कि हमारी छुड़ौती के लिए वो दी गई, हमारी छुड़ौती हो, इसीलिए यीशु ने उस मृत्यु को सहा। Matthew 20:28. मत्ती अध्याय 20 वचन 28। Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life as a ransom for many. जैसे कि मनुष्य का पुत्र वो इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। Everybody say ransom. सब लोग कहें छुड़ौती के लिए। Type that down in the live chat. Ransom. लाइव चैट में आप टाइप कीजिए, कमेंट्स में आप इसे टाइप कीजिए छुड़ौती के लिए। Jesus gave his life as a ransom for many people. यीशु ने बहुत से लोगों के लिए अपना जीवन छुड़ौती के लिए दे दिया। यीशु ने बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे दिए थे कि छुड़ौती की जाए। That many includes you. और उन बहुतों में आप लोग भी शामिल हैं। First Timothy chapter 2 verse number 6. पहला तिमोथियुस अध्याय 2 वचन 6, आइए पढ़े। Who gave himself as a ransom for all people. This has now been witnessed to at the proper time. जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। He gave himself as a ransom for all people. That all people includes you. उसने सभी लोगों के लिए दाम चुकाया और उन सभी लोगों में आप भी शामिल हैं। उसने अपने प्राण आपके लिए भी So what do दिए। you mean by ransom? तो छुड़ौती का मतलब क्या है? Ransom is an amount or some valuable thing that is given to free a captive. छुड़ौती का मतलब किसी को बंधुआई के लिए दिया गया दाम होता है। इसका मतलब है कि अगर कोई बंधुआई में है तो अगर हम जाकर उसका दाम देते हैं, ये छुड़ौती होता है। Somebody, kidnapped a person या फिर यदि कोई व्यक्ति किसी को अगवा करता है and somebody is giving a huge payment to get that person back. और उस व्यक्ति को वापस लाने के लिए कोई व्यक्ति बहुत बड़ा दाम चुकाता है, यही तो छुड़ौती है। That is the price for freeing a person. ये उस व्यक्ति को आजाद करवाने के लिए दिया गया दाम है। In the ancient times, this type of price or amount, huge value, was given for freeing slaves and captives of war. प्राचीन समय में जब युद्ध में लोग बंधुआई में चले जाते थे तो उनके छुटकारे के लिए इस तरह का बड़ा दाम दिया जाता था। उन्हें आजाद करवाने के लिए, उनकी छुड़ौती के लिए बहुत बड़ा दाम चुकाया जाता था। In the case of Christ, it was the redemptive price offered by Christ on the cross for the salvation of you and me. देखिए, मसीह के केस में उसने क्रूस पर बहुत बड़ा दाम चुकाया ताकि आपके और मेरे लिए, यानी इसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। Shall we thank Jesus for that? आइए इसके लिए हम यीशु का धन्यवाद करते हैं। Thank you, Jesus. We thank you, Jesus. We thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, आपका हम धन्यवाद करते There's a हैं। question. People have people sometimes become very cloudy when they hear about ransom because they have a question. Whom did Jesus give this ransom to? Satan or to God? कई बार लोग इसके बारे में बहुत ही अजीब सा सवाल पूछते हैं। वो पूछते हैं कि यीशु ने किसको दाम चुकाया, शैतान को या फिर परमेश्वर को? उसने किसे ये दाम चुकाया था? Jesus giving his, life and lifeblood as a ransom to the devil? क्या यीशु ने अपना जीवन और अपना लहू शैतान को दिया था कि हमारा छुटकारा हो जाए? I don't agree. मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। Some people say Jesus was giving the ransom to the devil who kidnapped us. कुछ लोग कहते हैं कि यीशु ने शैतान को छुड़ौती दी थी क्योंकि उसने हमें अगवा किया था। I don't agree. This is my personal opinion. मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, ये मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। I believe Jesus gave that ransom to God the Father. मैं विश्वास करता हूँ कि यीशु ने पिता परमेश्वर को वो छुड़ौती दी थी। This is because the same time God is righteous and God is love. देखिए, क्योंकि परमेश्वर एक ही समय में धर्मी भी है और प्रेम भी है। According to God's righteousness, He cannot leave a person without punishing.
परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार वो पापी को दंड दिए बिना नहीं रह सकता। वो पापी को अवश्य ही दंड देता है। That means he has to judge sinfulness. मतलब पाप का उसे न्याय करना ही है। On the other side, God is love. जबकि दूसरी ओर परमेश्वर प्रेम है। According to John 3:16, यूहन्ना 3:16 के अनुसार God so loved us that he gave his only begotten Son, that through him we may receive eternal life. परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि उसके द्वारा हम लोग अनंत जीवन प्राप्त कर सकें। देखिए, On the other side, God gave his Son as a sacrifice, as a ransom to quench God's wrath. दूसरी ओर परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान दिया ताकि उसके द्वारा परमेश्वर का क्रोध ठंडा हो सके। So, in my opinion, as far as I understand, God the Son was giving that ransom to God the Father so that we will be freed from all the judgment and all the condemnation and all the eternal punishment in the lake of fire. तो देखिए, मैं इस तरह मानता हूँ कि पुत्र ने पिता को छुड़ौती का दाम दे दिया। पिता परमेश्वर को उसने ये छुड़ौती इसीलिए दी ताकि हम लोग आजाद हो सके सारे दंड से और न्याय से और आग की झील में उस अनंत काल के दंड से, ताकि इसके द्वारा हमारा छुटकारा हो सके। Jesus' death was unique because it was giving a ransom to free us, the captives. यीशु की मृत्यु अलग थी क्योंकि हम जो बंधुआई में पड़े थे, Amen. हमारी छुड़ौती के लिए उसने बलिदान दे दिया। I want to give you one more thing. मैं आपको एक और बात बताऊं। Why was Jesus' death unique? यीशु की जो मृत्यु थी वो क्यों अलग थी, किस तरह से अलग थी? Because it was to reconcile us to God. क्योंकि ये तो हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ करवाने के लिए था। Romans 5:10. रोमियो 5:10। आइए देखें। For if while we were God's enemies, we were reconciled to him through the death of his Son, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। This is a very encouraging verse. ये तो प्रोत्साहित करने वाला वचन है, ये प्रोत्साहन देता है। See, we were going away from God, we were sinners, हम लोग तो परमेश्वर से दूर जा रहे थे, हम लोग we were in पापी an थे, empty way of life. हमारे जीवन में खालीपन था And the end result was that we became enemies of God. और इसका परिणाम ये हुआ कि हम परमेश्वर के शत्रु बन गए। And even while we were enemies, we were reconciled to him through the death of Jesus. जबकि हम परमेश्वर के शत्रु बन गए थे, लेकिन यीशु की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल मिलाप परमेश्वर से In हुआ। other words, God loved us so much even while we were sinners. दूसरे शब्दों में, जब हम पापी ही थे तब भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। Now, how much more, having been reconciled, shall we be saved through his life? तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। I can put it this way. तो चलिए मैं इन शब्दों को इस तरह से कहूँगा। Even before we were born again, even before we came to the Lord, even before we got saved, God loved and gave his Son. हमारे नए जन्म के पहले, हमारे उद्धार के पहले, हमारे प्रभु के पास आने के पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और अपना पुत्र दे And दिया। after coming to God, we are now not enemies of God, we are friends of God, we are children of God. परमेश्वर के पास आने के बाद हम उसके बैरी नहीं, हम उसके शत्रु नहीं, पर उसकी संतान और मित्र हैं। Now, after becoming his children and his friends, how much more will he save us? Will he bless us? अब उसकी संतान और मित्र होने के बाद वो हमें कितना बचा कर रखेगा, वो हम लोगों को कितनी आशीष देगा, सुरक्षित रखेगा। Can you think about that?
क्या आप सोच सकते हैं? Brothers and sisters, God gave His Son to us, only begotten Son. परमेश्वर ने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, हमारे लिए दे दिया। And Jesus Christ died in our place. और यीशु मसीह हमारी जगह पर मरा। So according to Romans 8 and verse number 32, तो रोमियो अध्याय 8 वचन 32 के अनुसार, if God did not spare His own Son, will He not give you everything that you need along with His Son? तो यदि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को नहीं रख छोड़ा तो Yes. अपने इकलौते पुत्र के साथ वो सब कुछ क्यों ना देगा? So brothers and sisters, take heart, you are loved by God so much. भाई और बहनों, ढाढ़स बांधे, क्योंकि परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया है। And when you doubt the love of God, this fact that Jesus gave His own life for us will encourage you. जब कभी आपको परमेश्वर के प्रेम पर संदेह होगा, ये सच्चाई कि यीशु ने अपना जीवन हमारे लिए दिया, ये आपको प्रोत्साहित करेगा। Father, I pray that you may fill every heart with your love and the understanding of your carefulness and your provision. पिता सबको आशीष दे और अपने प्रेम और प्रयोजन के बारे में इन्हें समझ दे। Father Lord, right now I pray that you may give them more and more wisdom and revelation so that they can understand what the Lord Jesus did through His death in their lives, in our lives. पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ कि इन्हें समझ दे ताकि ये लोग इन बातों को समझ पाएं कि यीशु ने हमारे लिए क्या क्या किया, क्या क्या दिया। इन्हें तू अपनी बुद्धि से भर दे। Right now, Father, I release your blessings and favor upon your people. इस समय पिता, मैं तेरे लोगों पर तेरी आशीष और तेरी कृपा को खोल देता हूँ। इन सब लोगों को तू आशीष दे पिता, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Thank you so much for watching today's episode. आज का एपिसोड देखने के लिए धन्यवाद। If you are blessed, you can become a sponsor or a partner of Blessing Today. अगर आपने आशीष प्राप्त की है तो आप ब्लेसिंग टुडे के पार्टनर या फिर स्पॉन्सर बनिए। Hallelujah. हालेलुया। Go to our website blessingtoday.tv. हमारी वेबसाइट पर जाइए blessingtoday.tv पर, आप वहां जरूर जाएं and subscribe to our YouTube channel Blessing Today. और YouTube चैनल ब्लेसिंग टुडे को सब्सक्राइब कीजिए। God bless you. I'll see you tomorrow. Bye bye. प्रभु आप सबको आशीष दे। फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।